Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, Ministry of Education of Saudi Arabia has launched a new program for fully funded international scholarships to attract outstanding talent and to raise the quality of education in the Kingdom of Saudi Arabia. In this video, I will try to explain what is Study in Saudi Arabia program and what are the main advantages and purpose to launch this program. By the way, I am recording this video in both languages, English and Urdu, so that my followers from outside the Pakistan and India they can also understand. इसलिए इस वीडियो को मैं दोनों ज़बानों में करने की कोशिश करूँगा और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कैसे आप सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल को फिल आउट करोगे टू अप्लाई इन मोर देन वन यूनिवर्सिटीज़ एंड आल्सो some information about best Saudi universities and what are the main required documents to apply for undergraduate and diploma level fully funded scholarships and how to complete these documents, especially for translation of documents. हमारे यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये बहुत अहम मसला है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं. इसके साथ साथ व्हाट इज़ द लेटेस्ट महरम पॉलिसी फॉर फीमेल स्टूडेंट्स. In the last, I will share my advice and my suggestions because you know that I am studying at King Abdulaziz University Jeddah. So without wasting any time, let's get started. Dear friends, here is the official news about Study in Saudi Arabia program. You can read complete information about this news from the link provided in the description of this video. Actually, there are about 25 universities under Ministry of Education of Saudi Arabia, but among these universities, only few of them, about 4 or 5, are famous, and you can say that international students apply in these 4 and 5 universities like King Abdulaziz University, Islamic University of Medina, King Saud, King Fahad, etc. So to give admission in other local or unknown universities, this program will be very beneficial. Also know by this system applications will send to the ministry and then the ministry will decide the selection. Therefore, the visa process will take shorter time, inshallah. So, in Urdu, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हो और इसका फ़ायदा ये होगा इस प्रोग्राम के तहत कि एक तो आपकी एप्लीकेशन पहले मिनिस्ट्री के पास जाएगी और मिनिस्ट्री ये एडमिशन सिलेक्शन में किरदार अदा करेगी. उससे ये होगा कि वीज़ा प्रोसेस जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था अभी कम लेगा. और सेकेंडली कुछ यूनिवर्सिटीज़ सऊदीया की जो मेन शहर हैं वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो दूसरे जो छोटे शहरों में है और अननोन है, ज़्यादा मशहूर नहीं है वो यूनिवर्सिटीज़. तो मिनिस्ट्री जो है ना आपका एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज़ में भी कर सकती है. तो इस तरह नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ़ एडमिशन जो है बढ़ जाएंगे. नाउ लेट्स गो टू द एप्लीकेशन पोर्टल. फॉर दिस पर्पस जस्ट गो टू द गूगल एंड राइट हेयर स्टडी इन सऊदी अरेबिया as I have already typed, and then MOE, enter, and you can find many websites, but you have to follow the official one, this one, studyinsaudi.moe.gov.sa. This is official website of this portal, so please don't follow any unofficial website. Here you can see that this is a beta version. It means this is an experimental copy, experimental website, and this website is not fully developed yet. And you can change the language of this website from here. As you can see that English, Arabic, Urdu, and even Hindi. So there are many languages in which you can read out all this website and all this information.
अगर आप उर्दू में करोगे तो सारी की सारी मालूमात यहाँ पर आपको दिखाई देगी उर्दू में, जो बहुत आसान है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि तजर्बाती कापी है। इसका मतलब है कि ये अभी फुली डेवलप नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी ऐड करने वाली हैं, लेकिन अप्लाई आपने इसी वेबसाइट के थ्रू करना है। तो इंग्लिश में ज़रा इजी होता है, इसलिए मैं इंग्लिश ही को करके आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी मालूमात यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। So just wait. Okay, now this website is in English, and just you will go through this website and you can find out many things. For example 80% students, international students, are in bachelor's degree, and 12% in masters and PhD, and 8% in diploma. And here a list of universities, and you can get more universities link by clicking on this लर्न अबाउट सऊदी यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह ही उर्दू में है, हिंदी में है, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 3 पेजेस हैं और तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो हेयर यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड द प्रोग्राम अवेलेबल इन ईच यूनिवर्सिटीज़। तो ये तो सारा इस वेबसाइट की बात होगी। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करें, and just for first time you have to create a new account. So click on this create a new account, and here you can find out that there are 3 different methods you can use for sign up or register in this portal. First one is to use national ID number, and the second one is to use Iqama ID number. This is a unique ID that is given by the government of Saudi Arabia for the people that is living here in the Saudi Arabia. Like we have an Iqama, and you can use Iqama ID or national ID or other. So I prefer that you will click on other, and you can use the email address. For example, if you want to apply for more than one time, so you can use a different email address. I hope you understand my point. If you use your national ID or Iqama ID, it will be here in the system and you cannot apply again. So that's why I prefer that you should use your email address. तो यहाँ पर उर्दू में मैं बताता चलूँ कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करके साइन अप हो सकते हो, या अपना अकामा आईडी, अकामा तो आपके पास नहीं होगा, तो शनाख्ती कार्ड नंबर की बजाय अगर आप अदर पे क्लिक करोगे तो ईमेल एड्रेस, अगर आप ईमेल एड्रेस को यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी एप्लीकेशन के दौरान कोई मिस्टेक हो गई है तो वो दोबारा एडिट ना हो रही हो, तो आप दोबारा एक नया ईमेल एड्रेस जनरेट करके तो उस नए ईमेल एड्रेस से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ईमेल एड्रेस यूज़ करें। उसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर नेशनलिटी पे क्लिक करोगे तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। जस्ट क्लिक ऑन योर नेशनलिटी एंड देन दिस रजिस्ट्रेशन डाटा विल अपेयर, एंड यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। दिस इज़ वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड द स्टैटिक थिंग that have this red color star, it is mandatory, you cannot skip this thing. And the other that has no any star, these are the optional one. So English name, just write there the English name and all this detail, because I am just showing you, I am not applying, it is just for your information. So I will write and then go further by clicking next. Just wait. So here I typed my name, like my name is Muhammad Usman. So my first name is Muhammad, and my family name, that is the last name, is Usman, and my father name is Afaq Ahmed, and grandfather name is Farzan Ali. So you should write like this. Okay, and then gender, male or female, and then date of birth. Just click here and go to here, and you can find anything, because I am just showing you, I am not going to the write the exact one. Just make this thing, and again this hijri में automatically convert हो गया, and then I have to put my mobile number. just कोई भी जो आपका मोबाइल नंबर है 0092 से लेकर आगे फिर आप कर दें। तो कोशिश करेंगे अगर सऊदीया का कोई नंबर हो तो वो ऐड कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। Okay, so click on next. I think so if you use your mobile number in outside the Saudi Arabia, then it will create some problems. So use this email address to receive the verification code.
तो ये एक पेज आपको दिखाई देगा, तो उसके बाद आप ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें ऐसे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दें. ओके, सो verification code has been sent to your registered email. So here you can see that I have received this email address, and this is my verification code 106, and just use this and just copy this and go to the here and paste there. Okay, and again save, and then successfully registered. Email has been sent to the resend your password. और यहाँ मुझे एक और ईमेल मसूल हो चुकी है, तो ये मेरा पासवर्ड रीसेट करने के लिए है, एंड इट इज़ शोइंग दैट दिस लिंक बिलो इज़ मैक्सिमम ऑफ 60 मिनट्स. 60 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना है. सो आई हैव टू क्रिएट माई ओन पासवर्ड. तो कोई भी मैं लिख सकता हूँ. सो हेयर आई हैव typed my password. So password rules are mentioned here. You should follow these rules and visual code, and then click on the send. So here it means registration is complete. Now I have to log in. Just click on login, and you will receive this type of page in Arabic. You can change the language of this website by using this Google Chrome. And here you see that you have to mention your username. Username is nothing but my email address. I will just type with usman@gmail.com. okay, and the password that I have just put, and then this visual code KYSN8. okay, and then I have to click on the login. That's it. Now the application procedure will start. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने दोबारा उसी मेन वेबसाइट पर आना है, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉगिन हुआ है. जो डिटेल मैंने पुट की है तो उसमें लॉगिन किया है. आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन. सो जस्ट क्लिक हेयर अप्लाई टू स्टडी नाउ, as I have clicked once, so that there should be if it appears like this, just click again. This is not working. Wait a minute. Okay, you can see that I have already started an application. This number is it. So just click here, and I have to click on begin, and you will receive like this one, and the application procedure will start from here. Just click here and then save and continue. अगर आप सेव करना चाहते हो और आप बाद में इसको दोबारा करना चाहते हो तो फिर आप ओनली सेव पर क्लिक करें. एंड अगर आप चाहते हो कि सेव के साथ साथ आप नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहते हो तो सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करें. तो ये जो 1 से लेकर 8 आप लोगों को कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेप्स आप लोगों ने फिल आउट करने हैं फ्राम फर्स्ट स्टेज टू 8 स्टेज. दिस इज़ द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो. इन 8 स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज है उसमें पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है, और दूसरी स्टेज पर आपके जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है यानी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह ये मेंशन करने हैं आपने. और तीसरे नंबर पर क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन थी जो आपने हासिल की है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उसकी डिटेल आप लोगों ने पुट करनी है. चौथे नंबर पर अगर आपने सऊदीया से कोई स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है या पहले कभी आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आपने उसकी डिटेल पुट करनी है. अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर दें. और अगर उर्दू के अलावा और कोई लैंग्वेज पर आपको बुर हासिल है, अरबिक या इंग्लिश, तो आप लोगों ने लैंग्वेज डिटेल में उसको मेंशन करना है. उसके अलावा 6 स्टेज पर यूनिवर्सिटी की डिटेल, कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफर करोगे और टिक करोगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. और उसके बाद लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड हैं उनको आपने अपलोड करना है इन द फॉर्म ऑफ PDF और GPG, वो हम अभी देखेंगे. और लास्ट में रिव्यू करके आपने कंफर्म करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. तो ये 8 स्टेजेस हैं. इन इंग्लिश दीज आर द 4 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज़ रिलेटेड टू द एप्लीकेंट डिटेल लाइक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर इनकम एक्स्ट्रा. एंड इन द सेकंड स्टेज योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल, मोबाइल number. And in the third stage your
previous qualification detail should be mentioned. And in the fourth stage, if you have already got any scholarship from Saudi Arabia, you have to mention their detail in the fourth stage, fourth step, you can say. And if you know any other language then your mother language, then you have to put its detail on stage 5. And after it, university data, it means in which university you want to apply. You have to mention 3 universities. And at the second last stage, you have to upload the document, required document and optional document. And in the last, you can review your application and then put and click on the confirm, and your application will be submitted. So this is the procedure. And now I will move very fastly, because this is the very simple thing. You have to do all these things, because I am not going to apply, that's why I will just show you. Okay, so first of all, types of grant, just click here, and there is two type of grant. One is external scholarship, and the first one is internal grant. Internal grant mean if anyone is living inside the Saudi Arabia, then he or should select the first one. अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पर सऊदीया में रह रहा है, उसके पास अकामा है, तो उसको इंटरनल ग्रांट के ऊपर क्लिक करना है. Now I will move little bit fast, because these all things are very simple and straightforward. You can do by yourself easily. और जिस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा. सबसे पहले आप लोगों ने पर्सनल डिटेल यहाँ पर पुट करनी है, और उसके बाद आपने जो अपना है ये जो सोशल स्टेटस, अगर सिंगल हैं तो सिंगल पर, अगर मैरिड है तो मिस्टर या मिसेस वाले खाने पर क्लिक करना है. उसके अलावा अथॉरिटी फ्रॉम वेयर द वीज़ा विल बी एक्वायर्ड, यहाँ पर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टाइप करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल प्रोवाइड यू वीज़ा फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप. ओके, और हेयर 2 या 3 लाइन्स में आप लोगों ने रीज़न्स बतानी है कि क्यों आप सऊदी अरेबिया में आकर पढ़ना चाहते हो. तो उसमें ये 2-3 पॉइंट मैंने लिखे हैं. एक तो ये एक बायलेटरल रिलेशन ऑफ योर कंट्री विद सऊदी अरेबिया, ये आप मेंशन कर सकते हो. इस्लामिक कल्चर है यहाँ पर, फीमेल के लिए बहुत सपोर्टिव और सेफ एनवायरनमेंट है. उसके अलावा रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है. ख़ासतौर पर किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की आप मेंशन कर सकते हो कि 106 नंबर पर है, और सॉरी 101 पर है. तो इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग वो भी इंप्रूव हो रही है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. उसके बाद फादर्स डिटेल और मदर्स डिटेल, जो चीज़ आपको ना पता हो या फिर आप नहीं मेंशन कर सकते तो वहाँ पर नॉट अवेलेबल आप लोगों ने लिख देना है. और इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हो तो येस पर क्लिक करें, और ये 2 कॉलम और ओपन हो जाएंगे, इनको भी आपने फिल आउट करना है. एंड देन फाइनेंशियल डिटेल ऑफ योर फादर. ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट. एंड बाय एनुअल का मतलब यह है कि पर ईयर, एक साल में आपके वाले साहब कितने पैसा कमाते हैं. और यहाँ पर आपने लिखना है सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली. अगर आप खुद जॉब नहीं कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन. अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर आपने अपना बताना है कि जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो. ओके, तो सोर्स ऑफ इनकम आपने यहाँ पर मेंशन करना है. उसके अलावा पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की एक्सपायरी डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है. जस्ट सेव एंड कंटिन्यू, देन द सेकंड स्टेप विल अपीयर, एंड इन दिस स्टेप यू जस्ट अपलोड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी बहुत इजी है. एक दफ़ा आप लोगों ने तसल्ली के साथ कर लेना है. उसके बाद आप लोगों को दोबारा बार अप्लाई करने की, दोबारा एडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, तो जो स्टार वाली चीज़ें हैं इसको हम फिल आउट करेंगे. तो मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए जल्दी से कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि हम आगे मूव कर सकें. और फर्स्ट रिलेटिव डिटेल, ये जो फर्स्ट रिलेटिव डिटेल और सेकंड रिलेटिव डिटेल्स हैं, ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पर वो आना चाहते हैं बीएस के लिए, अंडर ग्रेड या डिप्लोमा के लिए, तो महरम का होना लाजमी है. दिस इज़ द न्यू पॉलिसी कि महरम अभी तक मैंडेटरी है फॉर बीएस and Arabic diploma level education, but not for MS and PhD. So this system is only for undergraduate or diploma level. I think so कि ये undergrad और diploma तक ही रहेगा, और MS और PhD के लिए जो यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है वो उसको इस्तेमाल करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो. तो उसके लिए MS और PhD के लिए महरम की शर्त अभी ख़त्म कर दी गई है. मोस्टली
जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, लेकिन बीएस और डिप्लोमा के लिए अभी तक महरम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने महरम की डिटेल आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। ये सारी यहाँ पर फिल आउट करके जो स्टैरिक वाले हैं उनको आपने लाजमी फिल आउट करना है। इसके अलावा ये डिटेल ऑफ वन ऑफ द टीचर्स हु टीच द स्टूडेंट, ये भी आप अपने जो रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से आप बनाओगे या अपने प्रिंसिपल के साथ या अपना जो सुपरवाइज़र है जहाँ से आपने ग्रेड 12 की है उधर कोई आपका प्रिंसिपल या कोई अच्छा टीचर है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो तो कर लें, क्योंकि ये ऑप्शनल है। दीज आर ऑल द ऑप्शनल columns. So if you want to fill all these columns, it's good, your application will be strong if you will put all this detail. Okay, and if you don't want, then it's no प्रॉब्लम। ओके, सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपके पास ट्विटर का फेसबुक का ये अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपने नॉट अवेलेबल जस्ट लाइक नॉट अवेलेबल, और इसी तरह यहाँ पर नॉट अवेलेबल टाइप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो मैं ये फिल आउट करके नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। वेट अ मिनट। ओके जी, यहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल्स रेंडमली फिल कर ली है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड इट विल गो टू द थर्ड स्टेज। एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिटेल डालनी है। डिग्री रिक्वायर्ड, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर करें, अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डिप्लोमा करें, ठीक है। तो बैचलर अगर हम करें इसको सिलेक्ट, उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करोगे तो अनदर एक छोटा कॉलम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ जहाँ से आपने ग्रेड 12 की एजुकेशन हासिल की है वो, और यहाँ पर सिलेक्ट करें स्कूल की टाइप की गवर्नमेंट है या आपने मदरसे से पढ़े हो, तो यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई देगा। ये अरबी में है कुछ चीज़ें, तो अरबी के टू इंग्लिश करके आप लोग सीख सकते हो। स्कूल का नेम कोई भी आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद ग्रेड आपके क्या थे, एक्सीलेंट थे, वेरी गुड थे, गुड, ये जो भी आपके थे ना वो आपने यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है उसके पीछे लिखा होता है कि आपके ग्रेड किस कैटेगरी में आते हैं। फिर ग्रेजुएशन जो वो है डेट ऑफ ग्रेजुएशन कब आपने किया था, इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर लें 2022। ओके, जस्ट तो वो ऑटोमेटिकली हिजरी में आ जाएगा। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन में अगर आपने जो साइंसेस में किया तो फर्स्ट जो है ये इल्मी जो तभी लिखा हुआ है इसमें, और उसके बाद अगर शरी किया है और आपने जो मदरसे के जो तालिब इल्म होते हैं उनकी ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये तजारत है, ये ज़राअत है, ये ओके, ये सारी चीज़ आप इसको किसी ऐसे बंदे से जिसको अरबी से का थोड़ा बहुत पता हो उससे भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप सिंपली अरबिक टू इंग्लिश कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आप साइंसेस में किया तो फर्स्ट वन आप कर लो, जैसे प्री इंजीनियरिंग या इस तरह प्री मेडिकल, उसमें मेरा ख्याल है यही आएगा फर्स्ट जो है वही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अकोमोडेटिंग एवरेज आपकी कितनी थी, फॉर एग्जांपल 87%। ओके, तो जस्ट सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हाई स्कूल ये क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान और ये इसका जीपीए इतना था, ग्रेड इतना था, ये है। इसके अलावा अगर आपने इसके अलावा कोई और कोई कोर्स किया हुआ है, कोई अरबी का कोर्स किया हुआ है या कोई और आपके पास एजुकेशन है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके। ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, आपकी क्या इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जो भी आपकी इंटरेस्ट है, क्रिकेट, बुक्स रीडिंग, जो भी है एक्सेट्रा, जो मैं भी यहाँ पर सिंपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो आप ये हमें कर लें। वॉलंटियर वर्क भी अगर आपने कोई किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करें कि मैंने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो। वॉलंटियर वर्क का मतलब ये होता है कि एनी वर्क दैट यू हैव परफॉर्म्ड ड्यूरिंग योर स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विदाउट एनी पे, सो यू कैन टाइप द डिटेल ऑफ दिस वॉलंटियर वर्क। ओके, तो इससे भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। ओके, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है तो इसलिए। ओके, दिस फोर्थ में हैव यू रिसीव्ड अ प्रीवियस स्कॉलरशिप इन सऊदी अरेबिया, तो नो पर क्लिक कर दें। ठीक, अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप यस पर क्लिक करोगे तो आपने फिर अपना सारी डिटेल जो है ना वो बतानी है, आईडी नंबर, पासपोर्ट, जो जिस पासपोर्ट पर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिला था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें, डेट्स इट, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें जस्ट टू गो
to the stage number 5 and then is the student fluent in Arabic language। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती है और आप अरबिक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो ये लाजमी आप यस करो। ये आप लोगों की बहुत अच्छा आप लोगों को ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको बहुत स्ट्रांग कर देगा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि अरबिक लैंग्वेज की जो राइटिंग है ये आपकी बिगिनर लेवल की है फॉर एग्जांपल, और रीडिंग आपकी मीडियम है, ये भी मीडियम है, और लिसनिंग जो है ना वो आपकी फॉर एग्जांपल मीडियम है या एडवांस है। ठीक है, इस नेटिव का मतलब ये होता है कि ये आप मदर लैंग्वेज है, ये आपको सही आती है फुल बटा फुल, तो फिर आपने इस नेटिव पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आपने नहीं करना। ये नहीं कि हर एक पे आप समझो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। ओके, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो अदर लैंग्वेज ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। कौन सी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश यहाँ पर आपको दिखाई देनी चाहिए, यहाँ पर होनी तो चाहिए, कहाँ गई ये, आई थिंक फर्स्ट वाला है। ओके ओके, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने कौन सा, अगर कोई टेस्ट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल आइट्स दिया हुआ है, टॉफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने उसकी जो डिटेल है वो भी आपने उन्हें मेंशन कर देनी है। ओके, तो सो यहाँ पे इंग्लिश की भी आ गई। ठीक, ओके, इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। and now you are going to the I think so second last part, यूनिवर्सिटी डाटा। इसमें आपने क्लिक करना ऐड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। यू कैन ओनली सेलेक्ट 3 कॉलेज, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, ये आपका जो है ना वो सबसे पहला प्रेफरेंस है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आई थिंक सो कि इस यूनिवर्सिटी में जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी ये है कॉलेजेस हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कॉलेज ऑफ साइंस, कॉलेज ऑफ जियो साइंस, कॉलेज ऑफ मरीन साइंस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो। ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड यहाँ पर आपका जो है ना यूनिवर्सिटी एक जो है ना वो आ गई है, क्योंकि ये 00 इसलिए शो हो रहा है कि आपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया कि अगर आपने इंटरनल जो ग्रांट पर क्लिक किया होगा तो फिर देन ये क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर तब एक यहाँ पर जो लोकल एक एग्ज़ाम होता है, क्यास एग्ज़ाम होता है, उसकी डिटेल आपको शो होगी छोटे कॉलम के अंदर। ठीक है, अगर आप इंटरनल अप्लाई कर रहे हो फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर लिविंग इनसाइड द किंगडम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ओके, सो इसके बाद सेकंड अगर आपने करना है ऐड यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप किसी और अभी आप किंग अब्दुल अजीज़ को नहीं कर सकते, किसी और को कर दें, किंग खालिद को कर दें, और ये किंग कॉलेज ऑफ शरिया में आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके, तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐड कर ली। उसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा को, और यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा में भी आप इंजीनियरिंग में ही अप्लाई करना चाहते हो, तो ये आपने 3 प्रेफरेंस दे दी। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद किंग खालिद, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा। इसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप फीमेल हो तो आपने पहले चेक कर लेना है कि ये यूनिवर्सिटी फ़ीमेल के लिए है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हो, या जब आप स्टार्ट में वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी फ़ीमेल्स के लिए है। ओके, अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का जो खाना आप लोगों को दिखाई दे रहा था वो अब नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आप 3 ही चूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। सो और यहाँ पर आप लोगों की लोकेशन ही पता चल गई, ये यूनिवर्सिटी जद्दा में है, ये अबहा में है, और ये भी जद्दा में है। और आई थिंक सो कि यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपसे गलती से कुछ हो गया तो आप इसको डिलीट कर दें एंड यू कैन ऐड अनदर यूनिवर्सिटी। Okay, and but your preference will be these 3 universities. And also this is very important, do you want to allow your data to the rest of the university? If all desires are not accepted, sorry, it means अगर इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं होगा तो क्या आपकी एप्लीकेशन किसी और यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड की जाए, या आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर यस का बटन दबा देना ताकि आपकी एप्लीकेशन किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाए और फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँ स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए, एडमिशन के लिए। क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर तो हर कोई अप्लाई करेगा, तो लेकिन जो यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूसरे शहरों में है, जो मेन शहरों से हटकर है, वहाँ पर स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, तो उधर फिर आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। तो इसको यस करना ना भूलिएगा। ओके, इसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। That's it. I hope so. Okay, we are going to the end of this session. This is very long video, but I hope so it will be very helpful for you. So here you can find the required documents. These are mandatory, you cannot skip these documents, in which first of all birth certificate. You can get this birth certificate from Nadra if you belong to Pakistan.
अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जो बे फॉर्म होता है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, उसकी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करनी है। और अगर वो भी नहीं आपको मिल रहा तो मेरा मशवरा ये है कि फिर आप अपना जो आईडी कार्ड है वही लगा दें, कुछ ना कुछ लाजमी इसमें पुट करें। और अरबिक लैंग्वेज की ट्रांसलेशन कैसे करवानी है, इसके लिए ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों पे। कराची में बड़े शहरों में मोस्टली होते हैं, कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ से ये पासपोर्ट वगैरह बनते हैं, जो कचहरी वगैरह होते हैं वहाँ पर भी ये होती हैं, इनके जो ऑफिस वगैरह होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं। और ऑफिशियल होने चाहिए, उनकी ऑफिशियल लुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने वर्ड की फॉर्म में सिंपल गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके तो उस तरह कर लें, ऐसा नहीं करना। और लाहौर के अंदर एक अनारकली के पास, उर्दू बाज़ार के पास एक ट्रांसलेटर है जिससे मैंने करवाए थे, और वो ऑफिशियल है और उसका वो इजी है जो प्रोसेस है, यानी कि वो व्हाट्सएप पर भी आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसलेट करके आपको सेंड कर सकता है। तो उसके एग्जांपल जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस्मान आफाक, जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल रही है, इसके कम्युनिटी सेक्शन पे, कम्युनिटी को क्लिक करें, कम्युनिटी सेक्शन के नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, और यहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट एज अ सैम्पल, ये जो मेरा अपना मैरिज सर्टिफिकेट है उसका सैंपल जो है ना मैंने लगाया, तो इसके नीचे उसकी डिटेल वगैरह और नंबर वगैरह भी होगा, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली जो है ना ये बहुत अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, और बहुत कम रेट है इनका। स्टूडेंट के लिए 200-300 रुपये में एक डॉक्यूमेंट टेस्ट कर लेते, सॉरी ट्रांसलेट करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये हो गया ट्रांसलेशन के बारे में। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रेसिडेंट्स इन अरबिक, ये जो है ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रॉम योर पुलिस स्टेशन। दिस इज़ द पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके, ये आप वहाँ पर जाओगे तो ये इजीली, ये जो पुलिस खिदमत सेंटर है ना जो अभी नए बने, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो ये 6 महीने से ओल्डर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, अगर आपके पास आइट्स है या टॉफल है या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है तो आप लोगों ने लाजमी ये अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, ओके, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है। इट मीन्स इस कि आपने जो ग्रेड 12 की एजुकेशन है वो इंग्लिश में की है, तो अपने कॉलेज से जहाँ से आपने ग्रेड 12 की है वहाँ से ये ऑफिशियल ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक पेज का होता है। इसका सैंपल भी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन से मिल जाएगा। एंड फिर फादर्स आईडी, फादर्स का नेशनल आईडी कार्ड जो है उसका, फिर स्टेटमेंट, ग्रेड स्टेटमेंट, ये मार्कशीट है, इसको भी अरबी में ट्रांसलेट करना है। फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये डिग्री है, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन है। फिर मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, देयर इज़ नो एनी फॉर्मेट फॉर मेडिकल रिपोर्ट। जस्ट गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी गवर्नमेंट डॉक्टर, MBBS डॉक्टर who have his stamp and official नेम, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि आप फिज़िकली और मेंटली फिट हैं, ये मेन चीज़ है। तो सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। एक अगर ब्लड टेस्ट के वो जो ब्लड टेस्ट के रिज़ल्ट होते हैं वही अगर आप थोड़े लगा दो आई साइड, और इस तरह जो जर्नल जो फिजिशियन के होते हैं ना जो कि इतने डिटेल में नहीं होते, तो वो आप करवा के एक पेज पर ही, तो उसके नीचे ये लिखा होना चाहिए कि आप फिज़िकली और मेंटली फिट हो। तो स्टैंप होनी चाहिए और ऑफिशियल लुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने वर्ड की फॉर्म में किसी से हाथ से लिखवा दिया तो वो मेडिकल रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर इसके अलावा ये वही अरबी में ट्रांसलेट करनी है, और उसके बगैर अगर इंग्लिश में है या उर्दू में है, इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मदर्स आईडी, फिर पासपोर्ट पिक्चर एक, और फिर स्कोर डिटेक्शन। ये स्कोर डिटेक्शन आई थिंक सो कि ये मार्कशीट ही है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, वही है, आई थिंक सो, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी इतना पता नहीं है। हो सकता है कि ये जो अरबी में जो ये वेबसाइट होती है इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ चीज़ें सही समझ नहीं आती, तो आप किसी अगर इस वेबसाइट को अरबी में ट्रांसलेट करके तो किसी अरबी वाले जो जिसको अरबी आती हो तो उससे आप पूछ लो कि यार ये क्या मतलब है, ये अरबी में क्या लिखा हुआ है, या फिर आप इस पूरे फॉर्मों को उर्दू में कन्वर्ट करके फिर देखो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद ये मार्कशीट ही होनी चाहिए। ओके, फिर सिक्योरिटी केस फ्री सर्टिफिकेट,
ये भी इसका भी जो है वो इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ऊपर हो गया, तो आई होप सो कि ये भी वही एक चीज़ होगी। या इस पर आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है पता, लेकिन आप जो अपने कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के वो भी लगा सकते हो। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब इनमें इनमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने लाजमी करनी है अपलोड। और ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में भी ये है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, अपने कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और इसके अलावा ये आइडेंटिटी पिक्चर, इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, उससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अटैच कैसे करने हैं, इसके लिए सिंपल अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपके कंप्यूटर पे जिधर ये डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ से आपने उसको पीडीएफ की फॉर्म में अटैच करना है। अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, वेट अ मिनट, हाँ यस यस ये आ गया। सेलेक्ट फाइल करें, सेलेक्ट कर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, वाकई ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, ये क्या है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है ग्रेड स्टेटमेंट हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ओके ये हाई स्कूल सर्टिफिकेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसको मैंने अटैच किया, ठीक। तो ये अटैच होने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। इसको आप एडिट भी कर सकते हो अगर आप गलती से कोई और चीज़ आपने अटैच कर दी है, लेकिन ये अगर और कोई हो तो आप इसको एडिट करके सॉरी इधर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट करके दोबारा इसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरह सारे के सारे यहाँ पर ऐड होने चाहिए। ये तकरीबन जितने जो 11-12 ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, ओके। सो आई होप सो कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि अपने डॉक्यूमेंट पहले कंप्लीट करें। लेट्स सी व्हाट हैपन, यस प्लीज़ अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ओके। जस्ट ये जो जितने भी हैं ना, ये यहाँ पे क्लिक हो गया, टिक हो गया कि ये वाला हो गया। इस तरह सारे के सारे जब टिक हो जाएंगे तो तब करेंगे। तो मैं एक दफ़ा करके आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेज पर होगा क्या। वेट अ मिनट जी, ओके डियर फ्रेंड्स, आई हैव अपलोडेड ऑल दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन सी दैट देयर आर green tick sign, it means all the required documents are uploaded, okay। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट मैंने सब पर अपलोड कर दिया है, और इसको फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड इन द लास्ट यू कैन सी डैट रिव्यू एंड एप्लीकेशन डिटेल एंड यू हैव टू सबमिट, ओके। ये एक दफ़ा दोबारा आपको रिव्यू के लिए आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। आप लोगों ने गौर से ज़रा देख लेना है, कोई भी चीज़ मिस तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत इंटर कर दी हो तो यू कैन एडिट एनी टाइम, ओके। सो इसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना है। सबमिट का बटन दबाओगे तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल, ग्रीन एक कॉलम आएगा, उसमें अरबी में लिखा हुआ होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की, सारी रैंडमली आप लोगों को समझाने के लिए ये फॉर्म फिल किया है। तो आई होप सो कि दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल and good luck for your success, for your scholarship, for your admission. Thank you very much. And if you like this video, and sorry for a lengthy video, and if you like this video, please hit like and share with other friends and also subscribe my channel. Assalamu alaikum.